Hello. Hello. So, hi, my name is Davanjit Kaur, and today we are going to review some of the stats concepts. In this video, we'll get an overview of what is linear regression, what is multiple regression, what is ANOVA, and what is ANCOVA. So, these four things are somewhat similar but a lot different. So, these are the four concepts that are easy to get confused with, but still we'll try to break down each and every concept. So, let's begin. So, simple linear regression. Linear regression. Okay, what does the word linear mean? I mean, it's self-explanatory what the word linear means, a line. Okay, so what is a line made up of? Line is made up of points. Okay, let's get back to the very basics. We have point, line segment and line. So when we join 2 points, we get a line segment. So line segment is a line which has 2 endpoints, A and B. And what is a line? Line is what we get by joining different points, but it does not have any end point. So it can be extended from either sides. मतलब एक लाइन को आप extend कर सकते हो दोनों ends से. It does not have any end point. It can get extended to infinity. Okay. So when some points are related to each other in a line fashion, so these points are related to each other in a linear fashion. That means this is the line, this is the plot that we get when we are doing a simple linear regression. Okay. Now visualize this thing that we are in a school and we are on the 10th floor. Okay. And we are viewing some students, like let's say these are the students that are standing in a queue. These are standing in the line. And let's suppose ये सारे 8th class के students. Okay. So इन सबको पता है ये सारे 8th class के students हैं. They all know that okay, we are the roll number 1, 2, whatever, 3, whatever roll number they are. But they are the class students of class 8th. Okay. And these are in the linear relationship with each other because these are the linear relationship with each other because they know that they are the students of class 8 and class 8 के students को इसी line में खड़ा होना है, इसी line में खड़ा होना है. ठीक है, let's suppose ये हमारे axis है, ये हमारा x axis है, this is our y axis and यहाँ पे 8th point. ठीक है, ये 8th point है. तो इस रोल नंबर को या इस क्लास के बच्चों को पता है कि हमें इस 8th point पे खड़ा होना है. ठीक है. So these all are in the linear relationship with each other. How? That they know they have to stand with the y equals x. Okay. Now let's suppose another guy comes. Another fellow, another student of their class comes. He might be late to the class or he's a later entry. He is not aware that where the students of class 8 are standing. So यहाँ पे और भी बच्चे खड़े हैं. ठीक है. यहाँ पे लेट्स सपोज और बच्चे खड़े हैं 12th क्लास के. ठीक है, ये 12th क्लास के बच्चे खड़े हैं. यहाँ पे 5th क्लास के बच्चे खड़े हैं. ठीक है, ये थोड़े छोटे हैं तो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा मतलब लाइन में थोड़े इधर उधर हो गए हैं. ठीक है, तो बट है एक ही लाइन में बट स्टिल इधर उधर हो गया है. ये 8th क्लास के बच्चे. नाउ दिस स्टूडेंट कम्स and he's asking each of the last member of the class that okay, is this the class 8? So ये 5वीं क्लास का बच्चा बोलता है no, this is not the class 8. Okay, so this fellow guy comes there and asks the students that is this the class 8? Because I am searching for the class 8. तो ये लास्ट के 2-3 बच्चों से पूछता है क्योंकि आगे वाले थोड़े सीरियस हैं, सीरियसली खड़े हैं, तो लास्ट के 2-3 बच्चों से पूछ रहा है is this the class 8? So one guy replies, yeah, this is the class 8. So he's like, voila. So I'm going to stand here. So he just quietly stands at the end of this line. So now this guy, this last person also knows that, okay, he has found a linear relationship. He has found where he belongs. So these guys, these students were already in a linear relationship with each other. और ये जो आखिरी वाला आया था
इसको भी पता चल चुका है कि मैं भी इसी लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं भी 8th क्लास का पार्ट हूँ, तो मैं भी इस लाइन में कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाऊँगा। ठीक है, अभी इजी रखने के लिए अभी हमने इसको लास्ट में खड़ा किया है, बट लेट्स सपोज इसका रोल नंबर अगर 5 है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट इन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिट इन हो जाएगा, वट एवर द केसेस, बट दिस student knows that I belong to this line, so I'll have to stand somewhere in here. Okay, so just visualize this, that we as a spectator are standing in the 10th floor of the building and we are viewing all this. So when these students are standing in a line, we know that these guys are in a linear relationship with each other. Okay, let's draw somewhere neatly that these guys in a linear relationship with each other, these students, 1, 2, 3, whatever, I mean, n number of students are in a linear relationship with each other. This is the y-axis, this is the x-axis, and we are able to see that these guys in a linear relationship with each other. Okay, and the last guy also comes and also starts here. Okay, so this is what is simple linear regression basically is. अभी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझ रहे हैं, तो हमारे पास ये डेटा सेट है, इसमें क्या है, दैट दिस इज द सेल्स ऑफ आइस्ड कॉफ़ी. ओके, आइस्ड कॉफ़ी बिक रही है, और ये कैसे बिकेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि सेल्स कब बढ़ रही है, कम हो रही है. दिस वी हैव जस्ट वन वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द टेम्परेचर. अब यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. फर्स्ट वील गेट टू व्हाट अ वेरिएबल इज़. अब एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इट्स इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग. सो यहाँ पे टेम्परेचर और सेल्स है. अब 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? बाय डिफ़ॉल्ट है कि भाई टेम्परेचर ही इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड वेदर ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग. वेदर है इतना तो है, वो ग्लोबल मैक्रो लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग है, ये एंड वो है, सडन विंड्स आ रही है नहीं आ रही, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स अ होल लार्जर पिक्चर. बट फॉर नाउ वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द सेल्स ऑफ आइस्ड कॉफ़ी. ओके, सो फॉर दैट वी हैव दैट टेम्परेचर इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड अगर हम जनरल व्यू भी लेके चलें, तो जिस दिन ज़्यादा गर्मी होगी, बट ऑब्वियसली बात है उस दिन आइस्ड कॉफ़ी की सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए. दिस इज़ अ जनरल ओवरव्यू. ओके, सो इस सेंटेंस में भी देखिए, जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर किसी भी बेस नहीं है, टेम्परेचर इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इटसेल्फ, उस दिन सेल्स ज़्यादा होगी. ठीक है, सो जब हम कोडिंग में भी करते हैं फॉर द टेक्निकल पीपल, इफ़ दे आर अवेयर ऑफ, अगर हम इफ़ एल्स इफ कंडीशन भी लिखते हैं, सो इफ टेम्परेचर इज़ मोर देन सेल्स इज़ मोर, इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, राइट? सो सेल्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई वेरिएबल से डिनोट करते हैं, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स वेरिएबल से डिनोट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल temperature. Okay, so now what we are going to do is we are going to plot a graph. This is the x and this is the y. So यहाँ पे एक लाइन प्लॉट होगी, let's suppose ऐसी लाइन प्लॉट हो रही है, this is the x and this is the y. Okay, so ये जो लाइन प्लॉट हो रही है, this is how are we getting this line? We will get this line by plotting by this is the line of simple linear regression. So with this is the equation of this line. Okay, this is the y variable. Y variable is the sales variable we have here. X variable is the temperature variable, the independent variable. Okay, what is M and what is C? These are the most two important things of this line, with the help of which we'll get this line actually.
So m is basically it was slope. What is a slope? स्लोप का लिटरल मीनिंग ये होता है कि अगर हम एक यूनिट x को चेंज कर रहे हैं, x अगर 1 है, यहाँ 2 है, तो हमारा y कितना यूनिट चेंज हो रहा, ये जो चेंज है ना y में फ्रॉम दिस टू दिस, ये कितना होगा इफ़ वी आर चेंजिंग 1 यूनिट ऑफ x. ऐसे ही अगर मैं एक यूनिट x का और बढ़ा देती हूँ तो y में कितना यूनिट ऑफ चेंज आएगा. दिस इज़ व्हाट एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्लोप इज. ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है. इसका फॉर्मूला है m इक्वल्स, लेट्स सपोज वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एक लाइन कैसे बनती है, लाइन सेगमेंट सबसे पहले कैसे बनता है. वी हैव टू बी गिवन 2 पॉइंट्स, तभी उसको ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी. So let's suppose we are given 2 points, x1, y1, x2, y2. So how do we get the slope? We get the slope by y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay? तो यहाँ पे अगर हम देखें y2 minus y1, अगर हम स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स लेके चलें, so we have 87 minus 95 अपॉन 22 माइनस 23. ये नेगेटिव में आ जाएगा तो हम उल्टा भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. इसमें स्लोप बस नेगेटिव आएगा यहाँ से यहाँ तक. सो व्हाट वी वर डूइंग, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक्स पॉइंट्स देखते हैं कितने निकलेंगे. एक्स पॉइंट्स का हम स्केल ले लेते हैं, x is this right, तो हम स्केल ले लेते हैं 5 का. 5, 10, इसका ले लेते हैं 20 का. ओके, 20, let's take it 25. रफली कर रहे हैं 50, 75, 100. So let's start plotting the points. First of all, I had 22.8. 22.8 is here, somewhat here. 22.8. And iski sales हैं 87.5. So 87 is somewhere around here. This one. It changes things. After sprouted cool, let's go over another problem on the Friday. Goes to us. So, next to 31, and it's sold at 155, 150, not at 155. This is 150. 155 is already hit. Next is 24.4, sold at 100. That's not the same here. So, that's the idea, right? This ends into like this. And where's our circle? 18.8 is here, 55. Yeah. Somewhere this line is going to be like this. Like this. Next is 25.2, sales are 105. Correct, absolutely correct. So this line को overview में समझ में आ गया कि ये line कुछ ऐसी बनने वाली है. So x and y are in linear relationship. And इसकी line ये बनेगी. इस line की अगर equation हम निकालेंगे, so it's going to be y equals mx plus c. ठीक है, m की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है? y2 minus y1, x2 minus x1. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बैठ के तो कितना आएगा? -8 upon -1. So slope is 8. Okay, so y equals 8x plus c. Okay, we have not touched what c is. C is nothing but an intercept. Intercept of y axis. मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो ये जो लाइन है ये चलते 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 y को कहाँ कट करेगी? That is known as intercept. As simple as that. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर. ठीक है, ये जो लाइन आ रही है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको इधर कट करेगी
इधर कट करेगी. सो दिस इज नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट विच इज डिपिक्टेड बाई सी. सो अगर ये आई एम नॉट श्योर, ये लाइन जब कंटिन्यू हम करेंगे तो ये -25, सपोज ये -50 आ रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी -50. इन फ्यूचर इफ वी सॉल्व दिस इन पाइथन, सो वहाँ पे एग्जैक्ट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि ये लाइन की इक्वेशन है क्या. ठीक है. सो दिस वॉज लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन. मतलब दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, एंड बस हमारे को ये चाहिए कि एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो x के साथ कितना रिलेट कर पा रहा है, उस हिसाब से हमने एक लाइन बना दी. दिस इज नोन एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. अब हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यही वाला एग्जांपल जो हमने लिया था. एक एग्जांपल में हमने लेके चल रहे हैं कि अभी हमारे पास एक ही वेरिएबल था, टेम्परेचर, जिस पे हमारी सेल्स डिपेंड कर रही है. अब हम लेके चल रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल और आ गया है, वो है डे ऑफ द वीक. ठीक है, मतलब ये कि जो हमारी सेल्स हो रही हैं वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पे हो रही है. ठीक है, और उस पर भी डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है. मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो सेल्स ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर कम है तो सेल्स भी कम हो रही है. तो अब हमारा जो वाई वेरिएबल है सेल, वो हमारे दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक डे ऑफ द वीक एंड एक टेम्परेचर. नाउ नोट वन थिंग मोर, जो टेम्परेचर है उसके नीचे मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस, सेल्स के नीचे भी मैंने क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस, एंड डे ऑफ द वीक के नीचे क्या लिखा है, कैटेगोरिकल. सो हमारे वेरिएबल्स 3 टाइप के होते हैं. वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल्स 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज डिस्क्रीट, नंबर 2 इज कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 इज कैटेगोरिकल. बहुत ही आसान है एंड मोर और लेस दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? दीज टू नंबर्स, दीज टू वेरिएबल्स विल बी ऑफ, सबसे पहले तो डिजिट्स में होने चाहिए, एंड डिस्क्रीट जो है वो हमारे नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर्स में होंगे, एंड कॉन्टिन्यूस नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में भी हो सकता है. रियल नंबर्स बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हमारी डेसिमल वैल्यू भी इंक्लूड होती है. ठीक है, जैसे अभी हमने देखा टेम्परेचर कितना है, 35.2 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली. ठीक है, सेल्स हमने देखी कितनी, $100.5. ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स में नहीं होते. लेट्स सपोज एज इन ईयर्स. सो एन एक्स पर्सन, John is 25 years of age. His daughter is 5 years of age. His mother is 56 years of age, let's suppose. ठीक है, so in this age the age variable is discrete because this is in years. ठीक है, this is temperature, this can be continuous because जो temperature है वो decimal में भी आता है. This is sales in rupees, in dollars. ओके, थर्ड कैटेगरी क्या है, कैटेगोरिकल वेरिएबल. मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एज सिंपल एज दैट. अभी इस एग्जांपल में हम क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे को डेज देखने हैं. सो डेज हमारे कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे अप टिल संडे. सो वी हैव 7 डेज. सो हमारा जो डेज कॉलम है उसके अंदर कैटेगरीज होंगी. कितनी कैटेगरीज होंगी, टोटल 7 कैटेगरीज होंगी. सो दीज आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. These are 3 major type of variables that we are going to see. So now the thing is, अभी simple linear regression में क्या था, simple linear regression में हमारा y variable was dependent on just one variable, that is temperature. तो हमने एक line बनाई and dependency बता दी. If we are saying कि अभी 25 degrees हो रहा है temperature, so just let me know, like सुबह मैंने देख लिया कि temperature आज का 25 degrees रहेगा. So approximate me, give me the approximate sales, how many sales are going to be today. So हम इस लाइन पे 25 डिग्रीज x लगा के देख सकते हैं कि y का नंबर क्या आ रहा है. So that is roughly coming out to be
इस ग्राफ के हिसाब से, दैट इज़ रफली कमिंग आउट टू बी 85-90 के अप्रॉक्स. सो अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया हम लगा सकते हैं, ठीक है. बट द थिंग इज, सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन के लिए भी काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन वन वेरिएबल. बट नाउ द प्रॉब्लम दैट वी हैव in hand is that we have two variables. One is categorical, one is continuous variable. दोनों हमारे independent variables हैं. अब हम ये लाइन कैसे बनाएं? Now we have two x variables, category, day of the week and temperature. तो अब हमें इस लाइन के अंदर, जो ये वाली लाइन थी x वेरिएबल वाली लाइन, इसके अंदर हमें ना ही सिर्फ टेम्परेचर डालना है, बट हमें साथ ही साथ क्या डालना है, एक वेरिएबल डे भी डालना है. अब वो कैसे इनकॉर्पोरेट करें? वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे एक मेथड से जिसको कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी दैट एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को अगर हमें डिस्क्रीट में चेंज करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू अ वन हॉट एनकोडिंग. And this is our dependent variable and this is going to be our independent variable, which is the temperature plus categorical of day. ठीक है. In future we are going to see कि हम एक OLS function बनाते हैं, ordinary least squares, ठीक है. उस पर हम बेस करके ये इक्वेशन बना के फिर हम छोड़ाते हैं. Basically, okay, we'll just overview that. Let's suppose कि हमने x and y की लाइन बना ली है, ठीक है. हमने let's suppose कि कैटेगोरिकल वेरिएबल को हमने डिस्क्रीट में भी कन्वर्ट कर लिया एंड वी हैव गॉट अ लाइन, ठीक है. अब ऐसी तो बहुत सारी लाइंस आ सकती हैं जिसके ऊपर, मतलब अगर हमारे ये वेरिएबल्स हैं, ये हमारे डेटा सेट्स, डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है. सो इसके ऊपर द बेस्ट फिट लाइन वुड बी समवॉट लाइक दिस. लेकिन कोई एक लाइन हो सकती है जो ऐसी भी हो, ठीक है. कोई एक लाइन हो सकती है जो ऐसी भी फिट हो रही है. अब वैसे बहुत सारे और भी डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे. इसके बीच में भी बहुत सारी लाइंस आ सकती हैं जो कहीं ना कहीं फिट होंगी, ठीक है. कोई एक ऐसी भी हो सकती है जो इस लाइन पे फिट होगी. तो इसमें से द बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी? या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड करके करते रहें कि भाई पहले ये फिट आ रही है, फिर इसका एरर निकालना है, फिर इसका एरर निकालना है. या फिर जो आसान काम जो है बेसिकली वो ये है कि हम एक मेथड यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स. करने की ज़रूरत नहीं है, सारी लाइन के ट्रायल एरर नहीं करेंगे हम. दिस मेथड इज़ ऑलरेडी गिवन इन पाइथन. व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट कॉल दिस फंक्शन, ठीक है. जस्ट कॉल दिस फंक्शन, write a formula and that will automatically give you, it will automatically do this hit and trial method for you and will return you the best fit line. Okay, so let's suppose this is the best fit line that it has found, this yellow line, best fit line. Okay, and who returns us who returns this ONS, which is ordinary least square method. Okay, back to our categorical problem. So what we are going to do is now, अब हमें x axis पे हमें दो variables चाहिए, temperature and day of the week. Multiple linear regression ये करेगा कि हमारी जो ये x axis है इसके ऊपर ये हमारे किसी तरीके से फॉर नाउ किसी तरीके से ये दो वेरिएबल्स और मोर दैन टू वेरिएबल्स भी लेके आ सकता है. आई एम राइटिंग C in front of day because day is a categorical data and you need to convert that categorical data into a discrete value so that we can plot it into a graph. अब ग्राफ में कैटेगरी कैसे प्लॉट करेंगे ना, सो ग्राफ में हम सिर्फ वैल्यूज़ प्लॉट कर सकते हैं. So with this, we are converting this day category into a discrete variable. So temperature is already a continuous or a discrete variable. Day is getting converted into a discrete variable. So with this, ये x variable हमारे ये बन जाएंगे. इसकी हेल्प से हम y को प्लॉट कर सकते हैं. तो this is our multiple linear regression. Multiple मतलब एक से ज़्यादा independent values को consider करके एक regression line बनाना.
ठीक है, दिस इज नोन एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। एंड उसको हम निकालते भी कैसे, हमने थोड़ा सा देख लिया दैट वी what we do is there is an ordinary least square method by which we get the best fit line. Okay,